بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ملکوں کی کرنسیوں کا ادھار تبادلہ۔ دو ملکوں کی کرنسیوں کے باہمی تبادلے کے مسئلے میں اسلامی سود اسلامی مالیاتی ادارہ اسلامی بینکاری دور حاضر کے مالیاتی اور اقتصادی نظام میں بینک ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ فاضل سرمایہ کو جمع کر کے مختلف اقتصادی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کے ذریعے سرمایہ بھی فراہم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسلام سودی نظام تعاقد کی ہر شکل کو حرام قرار دیتا ہے۔ نمبر 2، اسلام مالیاتی اور اقتصادی اقدام جانبین کے لیے عدل کو ضروری شرط قرار دیتا ہے، جس کا مقتضا یہ ہے کہ صاحب مال اور صاحب عمل دونوں کے ساتھ عدل ہو، صاحب مال منافع میں شریک ہو اور سرمایہ کے نقصان کا مکمل ذمہ دار قرار دیا جائے، جبکہ صاحب عمل یعنی مستقل نفع میں شریک ہو اور بصورت نقصان وہ اپنی محنت کی اجرت سے محروم ہو۔ نمبر 3، زر کو وسیلہ سمجھا جائے نہ کہ مطلوب بذات، جس طرح بذائع ضروریہ اور عیش و راحت کے سامان ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سرمایہ کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا جائے اور اس کے ذریعے انسانوں کی حقیقی ضروریات اور ان کی مالی اور اقتصادی استعداد میں اضافہ کا ذریعہ بنایا جائے، برعکس موجودہ طریقے تصرف کے، جہاں سرمایہ کو صاحب مال اور بینک اپنی ازدیاد دولت کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، سرمایہ کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ کمزور اور پسماندہ طبقات کی معاشی حالت میں بہتری ہو اور نامنصفانہ تقسیم اور تفریق دولت میں کمی واقع ہو۔ اس اصول کے پیش نظر اسلامی بینکوں کو سرمایہ کی تقسیم اور فراہمی کرتے وقت ضروریات، تحسینیات اور کمالیات میں اول الذکر کو ترجیح دینا ہوگا اور شرعی منافع کے ساتھ اس امر کا بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ ملت کے کمزور اور ضعیف صاحبان استعداد کی ہمت افزائی کی جائے۔ نمبر 6، ان تمام وسائل کا تمویل سے احتراز کرنا ہوگا جو اگرچہ عصر حاضر میں مروج ہے لیکن خیانت، دھوکہ اور کتمان حقیقت کے شاہکار ہیں۔ نمبر 7، ان اصول ہدایت اور اسلامی نظام معیشت و معاشرت کے عمومی مقاصد، اس کے اخلاقی روح، دیانت و صداقت کے عملی اقدار کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا تاکہ یہ کوشش محض ایک میکانیکی مشن نہ بن جائے بلکہ حقیقی معنوں میں جاری نظام منافعت، لوٹ کھسوٹ، نفسانیت کی جگہ پر نظام رحمت اور باہمی خیر سگالی اور تعاون کا آئینہ دار۔ مسلم ملکوں میں تو سمجھ میں آتی ہے، ہمارے یہاں اسلامی بینکاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو ملکی اصول اور ضابطوں کی رعایت کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو مسائل ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ دیانت، بددیانتی وغیرہ جو اس قسم کی کتنی چیزیں ان بینکوں میں چلتی ہے، اسلامی بینک میں بھی اگر اسی طرح کی چیزیں چلی ہے، چند سرمایہ داروں ہی کے لیے یہ چیز ہو، یا جیسے اب تک کا تجربہ ہوا کہ بینکیں تو قائم کی گئی اور اس کے بعد ملکتیں، پراپرٹی بھی خریدی گئی اور اس کے بعد اچانک بینک غائب ہو گیا، برکت بینک نے بھی ایسا کیا، فوج والے نے بھی ایسا کیا، اس طرح کی اور چھوٹی چھوٹی الگ الگ جگہوں پر چلتی رہی۔ اس لیے اسلامی بینکنگ کا نظام عملی طور پر رائج کرنے کے لیے جن صاحب کی ایک گفتگو ہے اور جو اس سیمینار میں شریک ہے وہ خود ہی برکت بینک کے مینیجر تھے، محمود بھائی خطرے کر کے اوپن کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے خود ہی ان کی بددیانتی تو نہیں کہہ سکتے لیکن بد کرداری ضرور کہہ سکتے ہیں، ملکتیں خرید کر رہے اور پھر اس کا صحیح طریقے سے اس کا عوض لانے کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس طرح اور دیگر مسلم بینکوں نے یہ کیا۔ اس لیے اسلامی بینکاری کا نظام تو بہت اچھا ہے، اسلامی بینکنگ ہو تاکہ اس کی وجہ سے سود کی لعنت سے بچے، لیکن یہ ہے کہ سود سے بچتے ہوئے اسلامی بینکنگ کا نظام کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں، بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دینی اعتبار سے ہوتے نہیں ہیں، اور جو دینی اعتبار سے ہوتے ہیں ان کی بھی نیتوں کا اخلاص اور ان کا دنیوی کاروبار کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر آج تک کا تجربہ یہی ہے کہ اسلامی بینکنگ ہندوستان جیسے ملکوں میں تو کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر صحیح طریقے سے وہ نظام چلا دے۔ نفس اسلام میں کوئی قصور نہیں ہے، قصور چلانے والوں کا، اور یہاں کے سیکولر نظام کے اصول اور ضابطوں کی رعایت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ ان دونوں کی بنیاد کے اوپر مسلم فن بھی قائم نہیں رہا، بلوچ کے اندر غریبوں کو دینے والا، امداد باہمی والا، اس طرح کی بھی جو بینکیں ہیں دیوبند میں بھی چل رہا ہے، یہاں نہیں چل سکا۔ اس طرح کی کئی شکلیں ہیں کہ اسلامی بینکنگ کا نظام صحیح طریقے سے نہ چل سکنے کی بنیاد پر ہم کوئی صحیح ماڈل اسلام کا پیش نہیں کر سکے اقتصادی اعتبار سے۔ سامنے والا دوسرا بھی یہی ہے، غیر امدادی سوسائٹیاں یہ قائم کی جائے بہت اچھی ہے، لیکن ان کا چلانا بھی مشکل ہے۔ جو انجمنیں چلاتے ہیں اور جو اسی طریقے سے مسلم فنڈ چلاتے ہیں یہ غیر سودی امدادی سوسائٹیاں ہیں، روپیے پیسے دیتے ہیں لیکن لوگ جلدی واپس کرتے نہیں ہیں۔
हमारे यहाँ जो बंगले वाले साहब हैं, हाजी साहब आए थे साउथ अफ्रीका से, और उस वक्त यहाँ हालात ना खुशगवार थे भरूच जिले के। तो इन्होंने एक लंबी चौड़ी रकम से एक मकानात बनवाए, अलर्ट वाला, तो अभी के वहीं पड़े हुए हैं। मुसलमानों ने कब्जे कर लिए आगे पीने पीछे भी, और ज़मीन खाली पड़ी है। इन्होंने रिक्शा के लिए कुछ लोगों को उस ज़माने में रिक्शाएँ दी थी, तो पैसे ही वापस नहीं आए, रिक्शा ही खत्म हो गए। तो मुसलमानों में ये एक जमात इस्लामी थे मौलाना हबीबुर रहमान नकादर साहब, कि वो चला सके इमदाद बाहमी गैर सूदी इमदादी सोसाइटी, और बहुत अच्छी तरीके से चलाया। यहाँ तक कि मक्केवाला की एक बस्ती उन्होंने किसी गरीब को दिलवाया था, रात दिन साथ में बैठते थे। लेकिन जब हफ्ता उसने अदा नहीं किया तो इनके नाम पर नोटिस आई। तो उनके दो आदमियों का जिनका बैंक का खाता हो, जिनकी रकम हो, इनके पास से बैरन चेक ले लेते हैं और ब्लैंक चेक, और उसके ऊपर रकम लिख देते हैं कि इतनी रकम। ये लेने के बाद गरीब को देते हैं, तो मालदार को भी खतरा है कि चलो नहीं देता हूँ, मेरे चेक तो चले जाएंगे और मेरी रकम चली जाएगी। इस तरह उसूल और ज़ाब्ते से इन्होंने किया, तो अब तक वो चल सके हैं। जमा बसा इनका जो है, इसके अंदर ये चीज़ ये है कि भरूच में इन्होंने गैर इमदादी सोसाइटी, अब तो इनका इंतकाल हो गया है, और उसके बाद उनका मुस्तकिल नंबर भी निकला ह्यूमन वॉइस में, और उसके अंदर इनकी इस कारोबार की जो शक्लें और सूरतें इन्होंने जिक्र की, और जिस तरीके से इन्होंने चलाया, फिर अच्छी तरीका बतलाया कि मुसलमान चलाना चाहे तो चला सकते हैं गैर सूदी इमदादी सोसाइटी, लेकिन इसके लिए दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। तो हाजी साहब जिनके नाम पर लिखा, उन्होंने दूसरे दिन आकर मुझे कहा कि रात हमारे हाथे में तो ना हमारे ऊपर पड़पड़ी आए हुए। मैंने कहा रात की मजलिस आपकी समाधि मजलिस थी, इसलिए उसमें आपको जिक्र नहीं किया। दूसरे दिन सुबह में उनके नाम पर आ गया कि आपके आदमी ने पैसे नहीं दिए, अब अगर अगला आपने नहीं दिया तो आपके पैसों में से हम वसूल कर लेंगे। तो एकदम चौंक गए, दूसरे दिन जल्दी जाके अदा कर ही नहीं। ऐसे गैर सूदी इमदादी सोसाइटी कायम करके छोटे आदमी ने बतला दी इस तरीके से की जा सकती है। यहाँ इनके अकाईद पर बहस नहीं हो रही है। आलिम थे, देवबंद के फारिग थे, अशरफिया में भी पड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने जो ये एक इंतज़ाम किया था, ये करके अमली शक्ल में बतलाया कि गैर सूदी इमदादी सोसाइटी कायम हो सकती है। इसके लिए कितनी लोगों से दुश्मनी मोल लेनी पड़े, लेकिन आप कायम करना चाहे। इनके पड़ोस का मकान था, वो बिक रहा था, पड़ोसी ने कहा भी, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको दुश्मनों को देते हो कर्जा ले लो, लेकिन नहीं लिया, और वो मकान दूसरे किसी ने खरीद लिया। ये भी अभी उनके इंतकाल के बाद ही पता चला हमें। तो खैर गुफ्तगू ये है कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रुपये के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इधर दरिया के ऊपर है, दरिया का पानी अंदर नहीं आया है, ये मुश्किल होता है। किसी के लिए भी, मौलवी हो, तबलीगी हो, किसी के लिए भी बोलना आसान है, अल्लाह के करने से सब कुछ होता है, लेकिन अमली शक्ल में जब आते हैं तो बंदे ही से सब कुछ नज़र आ रहा है। इसलिए ये जो गैर सूदी इमदादी सोसाइटी कायम करना बहुत अच्छी है, लेकिन एक आदमी पैसे न दे तो आप क्या करें। इसके लिए एक शक्ल हुई है जो रात दिन चलती है, हर महीने कुछ पैसे देकर जमा करवाते हैं, और जब कभी कोई परेशानी आई तो उनके पास से पैसे ले लेते हैं। इसकी जो शक्ल हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब में चलती है, यही शक्ल कारगर है। इसके अलावा और कोई शक्ल इन्होंने जो अपनाई है वो इतनी आसान नहीं थी। किसी के पास से भी, और फिर उसकी महसूस मिकदार होती थी, आप जितना चाहे इतनी रकम नहीं ले सकते थे, मुतय्यन करके देते थे। इस तरीके अगर से इसके ऊपर वो आपके पास से कुछ नहीं लेते थे। आम दूसरी फंड वगैरह तो रहन के तौर पर सोना वगैरह लेते हैं, इन्होंने वो भी नहीं लिया, लेकिन जिसने पैसे दिए या जिसने जिम्मेदारी ली इनकी अदा करने की, उसके ऊपर ही इतना बोझ होता था कि खुद ब खुद वो निज़ाम सही चल रहा है। ये भी एक नई इन्होंने एक शक्ल बतलाई जो यहाँ नहीं है, लेकिन इन्होंने करके बतलाई। तो ये भी एक शक्ल ऐसी है कि भरूच जिले में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। ताकि कुछ मौलवी लोग भी गए जो चाहे इनके मुखालिफ थे, लेकिन परेशानी आई तो देवबंदियों को भी उनके पास, जमात इस्लामी वालों के पास जाना पड़ा। परेशानी इसलिए कि कहीं तो रुपया मिलता नहीं है, स्रोत जो दे रहे हैं 10%, 15% सूद के साथ, तो मौलवी बेचारा रुपया कहाँ से लाएगा कि सूद अदा कर। ऐसे मौके पर इनकी तरफ से बगैर सूद के, बगैर किसी गिरवी के, इस तरीके का जो निज़ाम था वो था भी पूरी अच्छी अच्छा। इसलिए ये इदारे चलाना है ज़रूर, इन्होंने जिक्र किया है, लेकिन ये लिखा हुआ है। अमली शक्ल में होने के लिए इन्होंने एक राह हमें बतलाई कि इस तरीके से देवबंदी लोग भी कर सकते हैं। हमारे गांव के मौलाना साहब इनकी मुखालफत करते थे, कहते थे कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने कहा मौलाना वो जो काम करते हैं वो काम हम करते हैं, लेकिन नहीं हो सका, हालांकि कर सकते थे वो। तो असल चीज़ है कि आपका मुकाबला जहाँ से लोग इनकी तरफ जा रहे हैं, जमात इस्लामी की तरफ, उसी मादी इक़्तिसादी दुनिया है। अक़ीदे के एतबार से तो बहुत कम जाने वाले थे, लेकिन मादी अक़ीदे की मेहनत की हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब ने, हमारे शेखुल हदीस साहब ने, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने
मुफ्ती महमूद साहब ने बरूच ज़िले में ये आए नहीं, लेकिन इतना तो किया, लेकिन अमली शक्ल में जो आपको करना था दूसरी चीज़, वो जो अमल कर रहे हैं वो अमल हमें करना चाहिए। इसलिए कि अवाम तो मजबूर होने की बुनियाद पर उनके पास जा रहे हैं। उनकी स्कूल में अपने बच्चे इसलिए रख रहे हैं कि वहाँ कुछ भी इस्लाम ही है, आपकी मार्के वाला स्कूल में इतना नहीं है जितना उनकी स्कूल में है। तो लोग तो अमलन एक चीज़ देख रहे हैं कि इनके यहाँ स्कूल में जाकर हमारे बच्चों को क्या मिलता है, किस तरीके से लोग कामयाब होते हैं। ये एक शख्स की बड़ी कुर्बानी थी जिसकी बुनियाद पर वो इस इदारे को बावजूद सारी मुखालफतों के चला सके, और हमें मुखालफत नहीं है फिर भी हम नहीं चला सकते। सिर्फ मुखालफत करने से कोई चीज़ चलती नहीं है, जब तक कि अमली तौर पर आप उसका बदल पेश न करें, और बेहतरीन बदल नहमुल बदल पेश करें। सिर्फ बदल भी नहीं, वरना तो वहीं जाएंगे। नहमुल बदल होगा तो ही लोग सामने आएंगे, और ये अब तक देवबंदियों से नहीं हुआ है। रुपये रकम इधर उधर बहुत कुछ होती है, लेकिन इस तरतीब से इन्होंने जो किया, और फिर वो किया तो बहुत सारे इनको मेहमान जमात की तरफ से बहुत लंबी रकमें मिली, घोरा होकर भी मेहमानों ने दी, तो उनके एतमाद ही की बुनियाद पर इसके लिए इन्होंने जमात इस्लामी से अलाहिदगी अलग कर ली। अमली अलाहिदगी है, एतकादी अलाहिदगी नहीं थी। बहुत से लोग धोखे में आते हैं। एक मरतबा बम्बई में एक जगह पर हम थे, छोटा सा जमात इस्लामी का मकतबा है, हमारी मदरसा इमदादिया की बिल्कुल बाजू में, जमजम की बाजू में, जमजम के तो वजह याद आए हलवे की, तो उसके बाजू में छोटी सी दुकान है जमात इस्लामी की, वहाँ बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी मिलती है। तो एक मरतबा इत्तेफाक से मौदूदी साहब की एक किताब मिली, सुन्नत का दीन में जो मकाम है उसके सिलसिले में। मैंने कहा ये क्यों हो, तो पता चला कि असल में ये परवेज़ के खिलाफ जवाब में लिखी थी, और यहाँ परवेज़ में मौजूदियत एक हो गई थी बरूच में। तो मैंने उनको कहा कि अजीब है, यहाँ तो मौदूदी साहब परवेज़ियत के खिलाफ लिख रहे हैं, और परवेज़ खुद मौदूदी साहब के खिलाफ बहुत बकवास कर चुका है, और बरूच में दोनों जमा हो गए हैं। यहाँ परवेज़ी फिक्की के साथ मौलाना कुतुब लिखते भी रहते थे उनकी चीज़ें आज़ाद करके, एक साहब है और समझी थे, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी रेलवे स्टेशन पर आया वहाँ से सेंट्रल पर, और उसका फ़ोन आया, ये कहा कि इनको तो हमने पुराने साल में जमात इस्लामी से निकाल दिया उनके मुताबिक। इतनी इनके पास तहकीक थी। फ़ौरन उन्होंने, मैंने कहा अमलन निकाला है क्या एतकादन का? अमलन हमारा काम था, एतकादन तो उनका अपना एतकाद है, इसलिए वो जैसा करें तो हम रोक भी सकते हैं। लेकिन खैर वो अमलन किया तभी ये कामयाब हुए, वरना किसी तंजीम के मातहत होते तो कामयाब नहीं होते आज। खैर थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए पहला अली कैसे मालियाती इदारा। ऐसे मालियाती इदारों को कुछ असहाबे खैर एक मिली ज़रूरत समझकर महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने खर्चों से चलाए, यानी इंतजामी यही करवाया। लोगों के पास कहा कि तुम्हारी रकम तुम्हारे पास है, सिर्फ अमानत के तौर पर 2 साल 5 साल के लिए दो, और जब हमारे पास आएगी तो हम आपको अदा, और इनको मिले इसे लोग इसलिए कि जब लेने वाले आए तो लेने वाले नमक बेचता है, यानी इंतजामी अखराजात का बार ये असहाबे खैर बर्दाश्त करें। अगर ये इदारे मुसलमानों में अपना ये एतमाद हासिल कर ले कि एक खालिश शरई हुदूद में आम मुसलमानों की माली इमदाद के लिए और उनको सूदी लेन देन से बचाने के लिए काम कर रही है, और उलमाए किराम की रहनुमाई भी उनको हासिल है, तो कभी उम्मीद है कि अहले तुरुवत मुसलमान ऐसे इदारों के इंतजामी मसारिफ बल्कि तरक्याती मसारिफ के लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले इंतजाम सही हो तो, वरना इंतजाम नहीं होता है, लोगों का एतमाद पहले नहीं होता। सेमिनार की राय में ऐसे तमाम इमदादी माली इदारों को हर तौर पर यह कोशिश करनी चाहिए कि सरमाए का कुछ हिस्सा पैदावारी ज़राए में लगाकर जायज़ आमदनी हासिल की जाए, और आमदनी हासिल करने के चक्कर आते हैं, उसी में गड़बड़ आती है आपस में। इसलिए ये जो शक्ल इन्होंने इख्तियार की इन्होंने नहीं की, इसलिए कामयाब हुए। इसलिए आमदनी के ज़राए तो फिर मालदारों को लालच आती है मुजारबत के तौर पर पैसे देने, बिल्ला पैसे फिर वो नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, और इंतजामी उमूर करने वाले भी इसके अंदर फंस सकते हैं। माल है अमीर तबाह, ऐसे ही थोड़ा उसका नाम रखा है। इसलिए ये है ही ऐसी चीज़ कि अच्छे के दीन और ईमान को बिगाड़ देता है। और कम से कम इतनी आमदनी ज़रूर हासिल कर ली जाए जिससे सोसाइटी के इंतजामी अखराजात पूरी किए जा सके। इंतजामी अखराजात की खुद बखुद दूसरी तंजीम चलाते हैं और उसके मातहत करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, कॉलेज भी चलाते हैं। इसके ज़िंदगी में ये चीज़ भी चलती है तो आसान हो जाता है। बरूच शहर में इन्होंने कहेंगे कि उस वक्त भी इंतजामी खर्चे भी बहुत कम, खुद अपनी तनख्वाह कम लेते थे, तो कुर्बानियों के बाद ये चीज़ है चाहे जमात इस्लामी के, लेकिन हमारे लिए आइडियल है मदरसे वालों के लिए कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। इसमें इतना आइडियल अकाइद की बात नहीं, लेकिन उस आदमी ने अपनी घर की कुर्बानी दी, उसके बाद ये काम किया तो कर सकते हैं, हासिल ये है। सेमिनार के शुरका में से मुतअद्दिद उलमा की राय ये है कि उजरतुल खिदमा
یعنی سروس چارج یا انتظامی اخراجات آپریشنل ایکسپنسز اگرچہ وہ ضروری اور واقعی اخراجات تک محدود ہو قرض خواہوں سے نہیں لیے جا سکتے. بعض علماء کی رائے میں اگرچہ اصلاً جائز ہے لیکن سود کا دروازہ کھل جانے کا خطرہ ہے اس لیے اسے قطعی طور پر ممنوع قرار دیا جانا چاہیے. برکت بینک کی جب قائم تھا اور یہ لوگ سروس چارج لیتے تھے. آپ کو مسلم فنڈ کا میں نے کہا کہ مسلم فنڈ میں 10,000 روپئے لے تو اس کے لیے الگ کاغذ تو اس کی فیس بھی الگ کاغذ کا کلر الگ ہو گیا. 1 لاکھ لو تو آپ کو تو رہن میں رکھنا ہی اپنی چیز لیکن یہ کاغذ لے کر آپ کے پاس سے سروس چارج کے آپ کا سونا ہم نے رکھا اس پر ہمارا نگران ہماری بلنگ استعمال ہو رہی ہے ہمارے آدمی ذمہ دار ہے. یہ پوری کارروائی کے لیے انہوں نے الگ الگ کاغذ رکھے تھے اور سروس چارج لیتے تھے. لینا تو جائز ہے لیکن یہاں پر بھی اگر آپ اس طریقے سے کسی غریب آدمی کو ایک طرف 1 لاکھ روپئے دے رہے ہیں اور دوسری طرف 5,000 روپئے سروس چارج لے رہے ہیں تو کوئی بات آئی سود والی. اس لیے حضرت مفتی صحیح صاحب نے برکت بینک والے کو یہ کہا تھا کہ یہ بھی نہ ہو بلکہ خالص آپ اپنے پاس سے رقم ادا کرو کام کاج کے اور آپ کا خرچہ آپ دوسرے ذرائع سے نکالو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امت مسجد مدرسوں کے لیے تو دے دیتی ہے حلال کمائی کے لیے اگر کوئی 5 پیسے بھی مانگے کہ امت مسلمہ سے سود کو ختم کر رہے ہیں اس کے لیے امداد کرو ہماری تو کوئی نہیں کرے گا. اسکول والے عزیز آ جاتے ہیں مدرسے والوں کو ہی بیچتے ہیں. ضرورت ویلفیئر ہاسپٹل کے لیے مولانا عبدالحمدان صاحب کو ہی بیچنا پڑا اس لیے ملیل کے بغیر لوگ چندہ دیتے ہیں. یہ مسئلہ الگ ہے. اسکولوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہیں اس کے لیے بھی اہل علم کو جانا پڑتا ہے. تو یہ ہمارا طبقہ جو ہے ہماری انجمنیں ہماری جمعیتیں یہ اگر اس طرح کا کام کرے امت کے لیے تو امت حرام کمائی سے بچ سکتی ہے اور جمعیت کو بھی پیسے دے سکتے ہیں. اگر جماعت اسلامی کو دیتے ہیں تو جمعیت کو بھی مل سکتے ہیں. اہل علم کو بھی اپنے گاؤں کے مطابق کم سے کم کرے وہ بھی بہت سارا مل سکتا ہے. بلکہ سر میں ماسٹروں کی ٹیم ہے اور انہوں نے غیر سودی نظام قائم کیا ہے. اسکول کے ٹیچر ہو کر بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. دیگر علماء کی اس رائے کے لیے اگر آپ نے لوگوں کے پاس سے چارج وصول کرنا چاہا تو آپ کی بینک اور سیکولر بینکوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور پھر یہ کہ آپ 1 لاکھ روپیہ قرض دیا اور سامنے اس کے پاس سے 5,000 روپئے انتظامی خرچ کے لیے دیا تو ویسے وہ کسی کے پاس جاتا تو 7-8 تک میں اس کو قرض دے دیتا. دیگر علماء کی رائے میں اس طرح کے اداروں کا قیام مفید اور ضروری ہے اور اگر اصحاب خیر کی طرف سے تعاون یا پیداواری ذرائع میں سرمایہ لگا کر بقدر ضرورت جائز آمدنی حاصل کر کے بھی ادارہ چلانا ممکن نہیں ہو تو ادارے کے ضروری اور حقیقی انتظامی اخراجات قرض خواہوں سے وصول کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ سامنے والے یہ سمجھیں گے کہ وہاں بھی روپیہ لے کر ہمیں زیادہ روپیہ دینا پڑتا ہے تو ایم ہوا کہ ایم ہوا. وہاں بھی سرکاری اور سیکولر جو بینکیں ہیں وہ بھی سود لیتی ہے اور یہ لوگ انتظامی خرچ کے عنوان سے میں سے تو جا ہی رہا ہے غریب کے. اب وہ کسی بھی طریقے سے جائے قرض لینے گیا تو ہی تو لے رہے ہو ورنہ ہم سے نہیں مانگ رہے. تو معلوم ہوا کہ قرض ہی کی بنیاد پر یہ چیز ہم پر آئی ہے. تو غریب آدمی تو صرف اتنا سوچے گا کہ مجھے 10,000 لینے ہیں اوپر سے 100-200 روپئے زیادہ لینے ہیں. اس لیے وہ بیچارہ اس کو آپ سود کا عنوان دو کہ نہ دو. مفتی لوگ یہ کہیں بھی کہ بھائی سروس چارج لینا جائز ہے اس لیے کہ ہر ادارہ اس طرح نہیں چل سکتا ہے بغیر روپئے کے. اس لیے مالدار لوگ الگ سے دے جیسے مفتی صاحب وغیرہ نے کہا لیکن مالداروں کی طرف سے الگ کب آئے گا جبکہ آپ کا نظام پہلے ایک مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں آئے. لیکن اب جب آپ کو شروع کرنا ہے تو شروع میں پریشانی آتی ہے. یہ پریشانی کے لیے پہلے سے کوئی حل کرنے کی تیاری کی جائے اہل علم مل کر یا اہل سرور سے گفتگو کر کے اور ان کا آپ پر اعتماد ہو. وہ غریبوں کو روپئے دے رہے ہیں آپ کو روپئے اس طرح مت دو آپ کی رقم ہمیں دے دو اس کے ذریعے ہم غریبوں کے ساتھ اس طرح ہم یہ قائم کریں گے اور ان کی رقم میں سے اتنی رقم ان کے پاس سے لیں گے اتنی رقم معاف کریں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں تو سروس چارج اسی میں آ جائے. اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکل جب کام کریں گے تو کام کا طریقہ پتہ چلے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے کاغذی کارروائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتے جب تک پریکٹیکل امت کو آرام سے بچانے کی کوشش نہیں کی جائے. اس ادائیگی کا کوئی نفع نہ سرمایہ انہوں نے جو بتلایا کہ قرض خواہوں سے وصول کیے جا سکتے ہیں مسئلے کی روح سے برابر ہے. اس لیے کہ جو اسلامی بینک ہے اس کو بھی تو نظام چلانا ہے. وہ اس روپیے سے کوئی نفع نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اسی خرچ میں لگا رہے ہیں. لیکن اسی خرچ میں لگانے کے بعد بھی ظاہری وسوسہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی تو غریبی کی جیب سے 1 لاکھ قرضہ دیا ہے آپ نے 5,000 اسے لے لی تو کوئی بھی لینا جائز ہے اس شکل کے اندر جتنا خرچہ ہو اتنا ہی.
इन उलमा की राय में इन वाक़ई और ज़रूरी इखराजात के तयन में उसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि असलन कर्ज की जो रूह शरीयत के पेश नज़र है उसके साथ कर्ज ख्वाहों से इन इखराजात का वसूल करना मेल नहीं खाता, लेकिन इन इखराजात के वसूल करने की इजाज़त नागुज़िर हालत की वजह से दी जा रही है। लिहाजा इन इखराजात के तयन में हद दर्जा एहतियात बरती जाए। ज़रूरी और वाक़ई इखराजात मुहतात अंदाज के साथ मुतय्यन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हिसाबी मुद्दत के पूरा होने के बाद ये मालूम हो कि इंतज़ामी इखराजात की मद में वसूल की गई तखमीनी रकम हकीकी इखराजात से ज़ायद हो तो ये ज़ायद रकम कर्जख्वाहों को वसूल किए गए खर्च के तनासुब से वापस कर देना वाजिब है। इनके पास इखराजात तो भी एक आदमी को 1 लाख रुपये दिए और इंतजामी खर्च उसके पास से 2000 लिया, किसी और को दिया 50,000, उसके पास से 1000 लिया है। इस तरीके से सबको अलग अलग दिया है और अलग अलग अपने रुपये के हिसाब से आपने उनके ऊपर जो चार्ज लगाया है। अब इत्तेफाक ये हुआ कि साल पूरे होने पर ये लिया हुआ चार्ज की रकम बच गई, अब ये वापस करनी है कर्जख्वाहों को, कर्जदारों को जिनको आपने कर्ज दिया है, इसलिए कि आपने इनके पास से सर्विस चार्ज के उन्वान से लिया था, इतना चार्ज हुआ नहीं है सर्विस का, बच गई है रकम, तो अब फिर हर एक के तनासुब से जितना लिया है उसके हिसाब से उनको वापस भी करना होगा। ये भी एक मुस्तकिल मसला है, लेकिन है इशारी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंतजामी कर्ज निकालने के लिए लीला हुकूमत के लिए कुछ लोगों को पहले से तैयार किया जाए, उनको समझाया जाए कि आदमी नमाज पढ़ेगा तो अपनी ज़ात के लिए, ये अम्र बिल मारूफ में से है, और सूद से बचना ये नहीं अनिल मुनकर है। और सूद की कबाहत, नमाज न पढ़ने की कबाहत से भी ज़्यादा किताबुल्लाह ने जिक्र की है। इस तरीके से समझा कर, और ये कि ये उम्मत मुस्लिमा का शेवा ही है कि वो सूद से पाक मुआशरा कायम करता है। इसलिए आप अगर रकम देते हैं तो इस्लाम को कायम करना, इस्लामी निज़ाम को कायम करने के आप जिम्मेदार हैं। इकामत सलात जैसे दावत व तबलीग है, इस तरीके से सूद से बचाकर उम्मत को हलाल कमाई की तरफ लाना। जो लोग सूदी कारोबार कर रहे थे उनको आपने इधर लिया तो इसका सवाब बहुत बड़ा आपको मिलता है। ये तैयार किया जाए कुछ लोगों को सूद की कबात वगैरह जिक्र करके, और उम्मत को मस्जिद मदरसे के अलावा इस किस्म की हुकूमत में भी रकम खर्च करने की दावत दी जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है कि बाहर से रकम लाकर किया जाए, सबसे अच्छा तरीका। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मुफ्तियों ने गुंजाइश दी है कि बक़द्र ज़रूरत आप ले सकते हैं, इसलिए कि आपको इससे फ़ायदा नहीं है। रकम इसकी हिफाजत के लिए आपने आदमी को जो रखा है, ये इन सब की हुकूमत की हिफाजत करता है, तो ये आदमी को जो पैसा मिल रहा है ये इन्हीं की तरफ से मिल रहा है, इन्हीं की तरफ से होना चाहिए। बेहतर तो ये था कि कंपनी अपनी तरफ से दे, लेकिन इस्लामी बैंक के पास इस तरह की सहूलियत नहीं है कि ये देने की गुंजाइश करता है। गैर सूदी बैंकिंग कमेटी की तफसीली रिपोर्ट पेश हुई। इस रिपोर्ट की तलखीस उर्दू ज़बान में जनाब अब्दुल हसीब साहब, साबिक डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जनाब मोहम्मद हुसैन खटखते ने शोराकाए सेमिनार के सामने पेश की। इस रिपोर्ट में यह अमरा वाज़ेह किया गया कि जब तक बैंकिंग के मौजूदा कवानीन में तरमीम नहीं की जाती और बैंकों को तिजारत और सनअत में बराह रास्त सरमाया लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती, मौजूदा कानून के तहत गैर सूदी इस्लामी बैंक कायम नहीं किए जा सकते। रिपोर्ट में मुतबादिल के तौर पर इंडियन कंपनीज एक्ट और कोऑपरेटिव क्रेडिट के तहत इस्लामी मालियाती इदारों और गैर सूदी सोसाइटीज़ कायम करने की सिफारिश की गई है। बाज़ खास हालत में पार्टनरशिप की गुंजाइश भी हो सकती है। रिपोर्ट की रोशनी में मुजारबत, शिरकत, मुराबाहा और इजारा जैसे इस्लामी तरीके तिजारत को नीज़ बैंक्स की इन खिदमात को इख्तियार किए जाने की सिफारिश की गई है जो सूद से पाक हो, जिन्हें नॉन बैंकिंग सर्विस कहा जाता है। इस रिपोर्ट में एक ऐसे मरकजी इदारा के कायम करने की सिफारिश भी की गई है जो इस तरह के कायम इस्लामी मालियाती इदारों को कंट्रोल करे, उनके इस्तेहकाम और काबिल एतमाद होने के सर्टिफिकेट जारी करे। निज अगर ऐसे नए माली इदारे कायम किए जाने का मंसूबा हो तो पहले उनकी सलाहियत कार और काबिल एतमाद होने के सिलसिले में ज़रूरी जायज़ा ले और उन्हें इस सिलसिले में मुफीद मशवरे दे, और एक मालियाती इदारे के मुंजमिद सरमाए को दूसरे मालियाती इदारे के जरिए मुफीद और जायज़ कारोबार में लगाने का इंतजाम करे। साथ ही साथ ये सिफारिश और ये रुपया ये लोगों को देते हैं और फिर जब उनके पास वापस आ जाएंगे तो आते रहेंगे, तो इस तरीके से वो कर्जा अदा कर रहे हैं। ये भी एक शक्ल है। हासिल ये है कि मसला ये निकला कि गैर सूदी बैंकिंग कैसे कायम की जाए। इसलिए मुल्क की जितनी कम बैंकिंग है उनको सब सूदी है। तो इस सिलसिले में काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिशें की। ये जो माहिरीन लोग हैं, अब्दुल हसीब साहब और मोहम्मद हुसैन खटखटे साहब भी माहिर तो थे इस लाइन के, लेकिन बरकत बैंक को वो चला नहीं सके। कभी होता है कि वो नरम तबीयत के थे और बीच में और कुछ लोग बैठे हुए थे, शायद वही हजम कर चुके हों, इनको मजबूर किया हो। इस तरह की भी शक्ल हो सकती है। इसलिए कि भरूच ने जो साहब को बिठाया था, पाशा साहब करके थे हैदराबाद के, और उन्होंने सत्यानाश किया यहाँ और फिर वो चले गए कॉनन में। लोगों को एतमाद दिलाने के लिए
मोतीलाल का जो दवाखाना है उसके ऊपर बरकत बैंक पूरी एक मंजिला ही खरीद लिया है। ये भी करते थे कि ये जहाँ जाते थे बैंकिंग के लिए वो जगह खरीद लेते थे ताकि लोगों का एतमाद हो, लेकिन खरीदते थे किसी के नाम पर। चाहे लोगों ने यहाँ भी हल्ला बोला उसके खत्म होने के बाद, लेकिन वहाँ जाके क्या फायदा। इसके साथ मामला किया था जी दादा, तो ये तो इनकी बोल रही है, अब आप बैंक में जाएं और उनका नाम रद्द करवाएं, कोर्ट में जाएं नाम रद्द करवाएं, उसके बाद आपके नाम पर होता है बुरा है क्यों। हाँ 100 की फर्नीचर है उसको आप ले सकते हैं, तो उससे क्या फायदा। कोई रुपया आपका बनने वाला नहीं, 1 लाख दिया उन्हें 5,000 का फर्नीचर है, और फिर एक आदमी थोड़ा जाएगा तोड़ करेंगे इस तरह, ये कहेगा कि मैं उन्हें, वो कहेगा कि, तो ये इस तरह से मसले हल नहीं हुए है। तब वो ये है कि इससे हिम्मत नहीं हारने की है, और ये हबीब ने हमको हिम्मत दिलाई है कि करना चाहे तो कर सकते हैं, गैर सूदी बैंकिंग भी कायम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यही है कि सारे के सारे एक तो हुकूमत के कानून से वाकिफ, ये बुनियादी जरूरी है, लेकिन दीनी मसाइल से भी वाकिफ होना ज़रूरी है। इसलिए ये हजरात तो हुकूमती निहर से आप किस तरह कायम कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको कायम करें। इसके लिए हमने गुजराती जो किताब है हमारी, इसके शुरू में बहुत तफसीली मजमून लिखा है। जो कोशिश की गई बड़का बैंक का आपको हवाला पहले दे चुका हूँ, केरला के अंदर हुकूमत ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ अपने शेयर भी उसके अंदर रखे और मुजारबत के तौर पर इनसे कारोबार किया, और ये कारोबार कर रही थी एक कंपनी, अरब मुल्कों की कंपनी थी, तो उसके पास तो रुपया था, ये सब कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद कोचिन की हाई कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दाखिल किया, उसको वो अकेला था, भाजपा में नहीं था, उसकी एक ही पार्टी ने एक ही मेंबर, वो अकेला ही, लेकिन जीत जाता था, बड़ा ब्राह्मण है, अमरीकी लॉबी का आदमी है सब, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो कुछ बोलता है फिर भी मोदी कुछ नहीं कर सकता, ये समझने का है, वरना अच्छों को सुला दिया, पर इसको क्यों नहीं सुला सकता है, इसका ताल्लुक बड़ा है CIA से है, पेंटागन से है, इसलिए इनको नहीं छेड़ सकते। ये इस किस्म के लोग होते हैं, हर मुल्क के अंदर ऐसे होते हैं, इनको छेड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि इनके ऊपर बरूद की करम फरमाई है। जैसे खुद ये मोदी भी खुद किसी ज़माने में यही था, ऊपर वालों की करम फरमाई थी, तो वगेला भी रसूलभाई भी सब हट गए कि हमें छेड़ाए हो नहीं, इसको हमारे हाथ इतने लंबे नहीं है कि इसको पकड़ सकें। तो इस तरीके से ये सब कुछ चला, और उस मौके के ऊपर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे मनमोहन सिंह, इन्होंने भी चाहा कि किसी तरीके से इस्लामिक मॉडल की बैंकें कायम की जाए, नाम इस्लामिक न रखा जाए, मौलाना खालिद साहब ने उसको ये भी मशवरा दिया था, नॉन सुन्नी बैंकिंग, जिसे ये नाम है गैर सुन्नी बैंकिंग, इस तरह का नाम रखो, इस्लाम आए तो लोगों को चीर होनी, इसलिए उसने उस वक्त भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये एक मजहबी चीज़ है और हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, इसलिए यहाँ इस्लामी बैंकें नहीं हो सकती, तो नॉन बैंकिंग भी, नॉन सूदी बैंकिंग भी हो सकती थी, लेकिन चूँकि इस तरह के बहुत सारे हमले हुए, वरना मनमोहन सिंह जानता था कि मुल्क की मईशत को अच्छा करने के लिए यही एक तरीका है, इस तरीके से अगर निज़ाम कायम किया जाए। फिर मुजारबा मुशारका का भी उन्होंने मुताला किया था, कई हिंदुस्तान के यही जो राघवन साहब थे जिनको निकाला गया था मोदी के पहले दौर के अंदर, ये भी हिंदुस्तान के बड़े माहिरीन में से इक्तिसादियात के, इन सब ने, और भी दूसरे 2-3 थे, इन सब ने कबूल किया, और आपको मैं कह चुका हूँ कि कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से, और वहाँ कई फरीक सामने आए और सब ने अपने अपने वकील रोके, और उस वक्त का जो मंजर था ये था कि आए थे इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को रद्द करने के लिए, और इसके बजाय दूसरे जो कारोबारी लोग थे उन्होंने कहा हमें भी इस कारोबार में शिरकत करना है, उल्टा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गया। सुब्रमण्यम साहब है, बतलाना ये है कि ये गैर सूदी बैंकिंग हिंदुस्तान में कायम हो सकती है, लेकिन बात ये होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो ऊपर के लोग हैं, जैसे मौलाना तकी साहब पूरी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहूदी लॉबी हर जगह आ आती है और मौलाना की वो चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कि आप देख रहे हैं 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान से क्रिकेट टीम चली गई, 1 सेकंड के अंदर बात हुई और फौरन, तो ये दुनिया की ऊपर की जो लॉबियाँ बैठी है वो करती है, ऐसा है कि इनके कहने पर मुल्क का बड़े से बड़ा आदमी हो, मनमोहन सिंह करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि कहाँ जा रहे हो खाई में, फौरन हम तुमको उठाकर फेंक देंगे, कि लॉबी इतनी मजबूत है यहूदियत की, सूदी कारोबार वाली की, ये तो इनके लिए मौत है। अब कानून अल-इस्लाम तो कुरान ने इसे पूरा फरमाया है, इनकी बुनियादी खसूसियात में से है सूद खाना, इसके बगैर वो जिंदा ही, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इस तरह यहूदी और हमारा बनिया, ये दोनों बगैर सूद के जिंदा ही नहीं रह सकते। तो ये निज़ाम कायम करने के लिए मेहनतें ज़रूर की काजी साहब ने, और कोशिश की कि हिंदुस्तान में भी किसी तरह हो। हमारे ही बड़े आदमी जो ये इनमें से बैंकिंग में से रिटायर हुए थे, इनका मशवरा लिया गया, उनको इस कमेटी में रखा गया, और फतेह साहब ने इसी बुनियाद पर ये कारोबार भी शुरू किया था, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत सारे मसले आते हैं।
साथ ही साथ ये सिफारिश भी की गई कि मुस्तनद उलमा पर मुश्तमिल एक ऐसा बोर्ड भी तश्कील दिया जाए जो वक्तन फ़वक्तन इस्लामी मालियाती इदारों में इख्तियार किए गए तरीके तिजारत पर गौर करके शरई हैसियत से रहनुमाई करे। मुस्तनद उलमाए किराम की कमेटियाँ तो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं होती है, या ये कि वो मौसर हो तो ये लोग इनको मौसर नहीं समझते हैं। मौलाना जाए वहाँ पर तो बैंक में कोई इनकी तरफ चेहरा ही न करे, तो एक वक्त है और वो कहने पास आ ये भी एक स्कीम होती है कि वहाँ आए तो उनका एतबार ही न किया जाए, सब तरफ से इनको इस तरीके से परेशान किया जाए कि किसी तरीके से वो काम ही न कर सके, या कहा जाए कि तुम तुम्हारी दुनिया में हो, हमारे प्रैक्टिकल हमें जो करना है वो हम जानते हैं कितनी पेचीदगियाँ हैं, हिंदुस्तान के कानून ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह सख्ती करके और सब सोसाइटी पे ही कर दिया जाए, या इनको कुछ हलवा दे दिया जाए कि वो लुकमे दहन दोजी। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लुकमे दहन दोजी मोहरा बंद करने का कौलिया, और सबको ऐसा फंसा दिया कि फिर उसके बाद वो कभी समझा ही न कर सके। ये भी बहुत एहतियात की चीज़ें होती है, लोग आते हैं बहुत अच्छे अंदाज के अंदर और फिर उसके बाद अगर आप फंस गए तो फिर वही आपके मुखालिफ ना के खजाना अभी भी पैसा ले नहीं जानी। सबको कई लोगों ने ऐसा किया लेकिन मालूम नहीं वो कैसी मिट्टी का था गया है, सीधा साधा आदमी था इसलिए चल गया, हमारी तरफ थोड़ा किताब में रहे तो वहाँ परेशानी आती है। इस्लामिक फ़िक़ह अकेडमी के चौथे सेमिनार दारुल सबीलुस सलाम हैदराबाद में बैंकिंग कमेटी के ये इजलास इस रिपोर्ट को मजमूउल फ़िक़्ह इस्लामी के दस्तावेज़ात के साथ रिकॉर्ड करने की हिदायत करता है और बैंकिंग कमेटी के अरकान का इस जामे रिपोर्ट के पेश करने पर शुक्रिया अदा करता है। बैंकिंग कमेटी ने पेश किया था, इन दोनों आदमियों ने मिलकर बड़ी मेहनत करके इन्होंने चाहा कि किसी तरह हिंदुस्तान बगैर सूदी बैंकिंग का निज़ाम कायम हो। इन्होंने इस सिलसिले में पूरा जो खाका पेश किया था इसका शुक्रिया भी अदा किया गया। नंबर 2, यह सेमिनार तय करता है कि उलमा का एक बोर्ड मजमूउल फ़िक़्ह इस्लामी के जरिए तश्कील दिया जाए जो माहिरीन की तरफ से इस तरह के इस्लामी मालियाती इदारों में रोज़मर्रा पेश आने वाले सवालात और अमल इसके ऊपर बात की जाए तो एक इदारा था बरकत वाला वो भी गया, कोई इदारे ऐसे नहीं है कि जितने और अमल मुश्किलात जिन्हें बैंकिंग के वाले चला रहे हैं अपनी जगह पर हर जहाँ भी हो रहे सेंट्रल तौर पर भी वहाँ की उनकी और सूबाई एतबार से भी ये लोग थोड़ा थोड़ा बैतुल माल के उन्वान से इसी तरह तो कर रहे थे, लेकिन ये समझ रहे थे कि मैं अकेला करूँगा तो मेरे अपने इख्तियार से होगा और इनके साथ मिलकर करूँगा तो मजबूर होगा, इसलिए जमात इस्लामी से इनको निकाला गया है। इसको हकीकती तौर पर नहीं निकाला है, अमली काम में इख्तलाफात की बुनियाद पर निकाला है। और अमल मुश्किलात जिन्हें बैंकिंग के माहिरीन की तरफ से उन्हें पेश किया जाए वो उन पर शरई राय और फतवा सादरी करें। मस्कुरा बाला रिपोर्ट में उठाए गए सवालात का फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में जायजा लेकर इनका शरई हल पेश करें। इनका शरई हल वही तलाश करेगा जो खुद बैंकिंग के निज़ाम को समझा हुआ हो, वरना वो कहेगा यहाँ बैठकर और प्रैक्टिकल वहाँ हो ही न सकता हो। इसलिए ऐसी राय मौलवी तो मुफ्ती तो दे सकता है अपने कमरे में बैठकर, लेकिन प्रैक्टिकल तो मुफ्ती होगा कि वहाँ की पेचीदगियाँ क्या है और उनको हल करने के लिए मौलाना तकी साहब ये सब कुछ कर चुके हैं और जो पेचीदगियाँ थी उन सबको आपने अपने 8 हिस्सों के अंदर सब कुछ बदला कर दिखा दिया है। बाकी कुछ कम था तो फुल वीडियो के अंदर पूरी तफसील जिक्र कर दिया, लोगों को भी समझाया कि किस तरह निज़ाम चलाया जा सकता है। नंबर 3, सेमिनार ये भी तय करता है कि बैंकिंग और इस्लामी इक़्तिसादियत के माहिरीन पर मुश्तमिल एक मुस्तकिल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो मुसलसल अपना काम जारी रखे और ऐसे बेहतर से बेहतर बैंक से जारी होने वाले मुख्तलिफ कार्ड इस सेमिनार में बैंक से जारी होने वाले मुख्तलिफ कार्ड पर इस नुक्ते नज़र बहस की गई कि किस सूरत में सूद पाया जाता है और किस सूरत में नहीं पाया जाता, क्योंकि इस्लाम में गरीबों का इस्तेहसाल होने की वजह से सूद को हराम करार दिया गया है और इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। इस पस मंज़र में जो करारदादे मंजूर हुई वो इस तरह है। नंबर 1, चूँकि मामलात में असल इबाहत है इसलिए ATM कार्ड जिसके जरिए मशीन से अपनी जमा करदा रकम निकाली जाती है कि इस्तेमाल में शरअन कोई कबाहत नहीं है। आपकी रकम अपने घर में महफूज नहीं है, बैंक में महफूज है। अब उसको निकालने का तरीका चाहे सीधे जाकर निकालो चाहे ATM कार्ड में से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नंबर 2, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल इसके जरिए खरीदो फरोख्त और एक खाते से दूसरे खाते में रकम की मुंतकिली दुरुस्त और जायज़ है। रकम की मुंतकिली डेबिट कार्ड के जरिए ये भी यहाँ चलता है। नंबर 3, ATM कार्ड और डेबिट कार्ड के हुसूल और इस्तेमाल के लिए जो रकम अदा की जाती है वो कार्ड का मुआवजा और सर्विस चार्ज है, इसलिए इसका अदा करना जायज़ है। ATM कार्ड के लिए भी और डेबिट कार्ड के लिए भी, ये दोनों के लिए जो चार्ज अदा करना है वो जायज़ है। तीसरा असल मसला है। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड की मुरव्वत सूरत चूँकि सूदी मामले पर मुश्तमिल है, लिहाजा क्रेडिट कार्ड या इस किस्म के किसी कार्ड का हासिल करना जायज़ नहीं है। यही मसला है, क्रेडिट कार्ड ही का मसला आता है। क्रेडिट कार्ड की जो शक्ल होती है आपको कार्ड दिया जाता है, आपकी मुलाजमत को पेश नज़र रखकर के माहाना आपकी इतनी तनख्वाह है, आपकी तिजारत देकर के इतना कारोबार कर सकते हैं,
या किसी कंपनी के साथ आपका मुसलसल रब्ता रहा तो कंपनी की तरफ से आपको क्रेडिट मिलता है। अब उसमें अजीब व गरीब है, जितना ज़्यादा आपने उधार लिया इनके पास से इतना आप बड़े हो, और जितना कैश कारोबार करे वो इतना बड़ा। ताकि इसके क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किए, उसके ऊपर आपको इनकी तरफ से इनामात भी मिलते हैं कि आपने हमारी कंपनी से इतना उधार लिया और इतना सूद हमें दिया, संपत्ति इतना सूद दिया, इसके ऊपर वो आपको देते हैं। तो अब क्रेडिट कार्ड यही होता है कि किसी कंपनी का कार्ड है आपके पास, 1 महीने 2 महीने जो इनकी तारीख लिखी हुई होती है, आप किसी भी मॉल में जाएंगे जिनका इनसे रब्ता होगा, और किसी भी दुकान यानी इसी किस्म के मॉल वालों के पास जाकर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहे, पूरी रकम से पूरी जो चीज़ें खरीदना चाहे खरीदते हैं। 1 महीने तक इस तरीके से आप करते रहते हैं, महीने में तनख्वाह हुई आप उस रकम को जमा करवा लेते हैं। इस एतबार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये शर्त होती है कि अगर आपने महीने की 31-30 तारीख को अगर जमा नहीं करवाई रकम, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि पैसा नहीं आया, नहीं जमा कर सके आप, तो उस मौके पर अगला जितना पहली तारीख से लेकर अब तक जितना खरीदा है सबके ऊपर 2%, 3% इनका जो वसूल होगा उसके मुताबिक सूद अदा करना पड़ेगा। ये चार्ज की शक्ल कहो कि सूद कहो, ये जो चीज़ ली जा रही है, आपका इनके साथ मसला तो तय हो गया है कि आप मुझे उधार देंगे, यही तो है। ये हवाला है, दुकान वाले के पास एक बिल होता है और एक बिल कंपनी के पास होता है, इस कंपनी का आपका कार्ड होता है। ATM कार्ड वाला दुकान वाले के पास आप गए तो उन्होंने जितना माल आपको उधार दिया उसका बिल आपको भी पहुंचाया और वहाँ भी पहुंचाया, इस महीने का पूरा हिसाब इस तरीके से कर दिया। अब कभी ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड दिया, ये क्रेडिट किस बुनियाद पर दी है वो एक अलग बहस है। अमूमन तो यही कि तनख्वाह है, तनख्वाहदार आदमी है, इतनी तनख्वाह है इसकी, इस बुनियाद पर, या कारोबारी है और उसका कारोबार इधर उधर हो रहा है, इस बुनियाद पर वो आपको देते हैं। ये खाली छोटी दुकान वाले नहीं, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड, बड़ी दुकान, बड़े कारोबार वालों के साथ भी इस तरह का मामला होता है। तो क्रेडिट कार्ड देते वक्त ही ये शर्त होती है गोया कि अगर आपने महीने के आखिर तक में नहीं अदा किया तो अब तक का पूरा आपसे सूद वसूल किया जाएगा। तो ये पहली ऐसी है जिसमें सूद की शर्त लगाई गई है, चाहे अमलन आपने पूरे महीने के पैसे अदा कर दिए महीना पूरा होने पर और कोई आपने इसके साथ मामला नहीं किया और कोई सूद भी नहीं दिया, लेकिन आपकी वजह जो इससे हुई थी उसमें शर्त फासिल थी। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड जायज़ नहीं है। डेबिट कार्ड की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं कारोबारी लोगों से। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की मुरवजा शक्लें मुख्तलिफ मफासिद को शामिल है। इसमें धोखा, गरर, बे को एक गैर मुताल्लिक चीज़ के साथ मशरूत करना, एक मामले को 2 मामलों से मुरक्कब बना देना है। और उसके शुरू के अंदर डेबिट कार्ड की क्या क्या शक्लें हैं वो लिखी है, जल्ले है नहीं पड़े हुए हैं कुछ खाने में, एक सेट नहीं है, कई सेट है, जब मुफ्ती लोगों को पढ़ना हो तो डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड तो सर आपको समझा दिया। डेबिट की थोड़ी शक्लें अलग अलग है और एक हम तो सभी जानते हैं, इसलिए तो ये क्या शक्लें हैं। इसी तरह ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से ये कारोबार होता है, उसकी भी शक्लें सारी समझाई है। कारोबार की दुनिया में सब चल रहा है और शिबे कीमत वगैरह खिलाफ शरह बातें पाई जाती है और खरीदारों का असल मकसद सामान खरीद करना नहीं होता बल्कि गैर मामूली कमीशन हासिल करना होता है, इसलिए उसमें शिरकत करना जायज़ नहीं है। शुरू में एक जैसे हमारे यहाँ चला था हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातहू को किसी ने पूछा और सवाल की जो शक्ल बतलाई थी नेटवर्क मार्केटिंग की, वो शक्ल ऐसी थी कि जिससे ऐसा लगता था कि कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने उसके जवाब का हुक्म बताया, लेकिन फिर बाद में कश्मीर से किसी मुफ्ती साहब ने और वहाँ अमलन हुआ होगा उनके पास ये मसला आया तो उन्होंने फिर सवाल करके इसकी शक्ल दी थी, तो फिर मुफ्ती साहब ने अदम जवाब का हुक्म लगाया। इसलिए कि ये चीज़ ऐसी है कि समझ में ही नहीं आती है। एक आदमी खरीद रहा है एक आदमी से, फिर ये दूसरा किसी को खरीदार बनाता है, तीसरे को बनाता है, चौथे को, ये जिनको बनाते हैं वो किसी और को बनाता है। ये पिरामिड कहा जाता है, नीचे से ऊपर तक जा, ये इस तरीके से इतने आदमियों को बनाते हैं और हर एक को उसके ऊपर कुछ न कुछ मिलता है। पहलों को दूसरा खरीदे तो मिले, दूसरे को तीसरा चौथा खरीदे तो उसके ऊपर मिले। इस तरह पहले को इन तमाम जितने भी खरीदते जाएंगे तो किताब के अंदर थोड़ी उसका नक्शा भी बताया है कि किस तरीके से है सेमिनार के मजले में। इस तरीके की नेटवर्किंग मार्केटिंग ये शुरू हुई। एक मरतबा हम लोग प्रेस वाले के यहाँ गए, किताब छपवाना था। सब मेरे साथ एक मौलाना थे जिनको दुनिया से इतना ज़्यादा ये नहीं था, वो दुकान को प्रेस वाला इनके सामने ये नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहा है, ये इस तरह। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा तू घर गुरु पैगर, ये बेचारा तेरी बात समझ ही नहीं रहा है और तू कह रहा है। और उसने भी मुझे पूछा उसकी बकरी वाला जवाब दिया
उसकी बकरी जो थी नहीं मुझे उसका जवाब कि मौलाना मुझे भी अभी अभी नया नया कंपनी में लगा हूँ, ये प्रेस का तो काम चलता रहेगा, भाई बड़ा से वीज़ा चल रहे, लेकिन मैं दूसरी तो कोई कमाई की शक्ल इख्तियार करूँ तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे तो अपना सबक याद करना है, तो किसी के सामने सुनाना है, बकरी हो गई उदाहरण, तो मैं इनके सामने सुना रहा हूँ ताकि मुझे किसी और अच्छे पढ़े लिखे के सामने बयान करना हो तो मैं बयान कर सकूँ। मैंने तो वो नेटवर्क मार्केटिंग वो जो समझा रहे थे पूरा, उसको समझ कर ही ऐसा लगता था कि ये कौन सी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं कि ये कुछ न करे, खरीदारी बनाते रहें और इसकी बुनियाद पर उनको क्या मिलता रहे, इन सब का नफ़ा मिले तो कितना नफ़ा देगी वो कंपनी हो। उस वक्त उन्होंने कागज़ भी हमको दिया था और उसमें बतलाया था कि ये इस तरीके से अमेरिकन कंपनी है, इसके ये ब्रश आते हैं, इसका टूथपेस्ट आता है, इसका साबुन आता है, इस कंपनी का आप दूसरों को बेचो। चीज़ें ऐसी होती थी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात, लेकिन वो इतनी महंगी होती थी और अमेरिका का नाम लिया जाता था। हमारे मुंशी बिरादर थे जिनका अफ्रीका के अंदर साबुन की फैक्ट्री थी, तो अल्लाह आलम लोग कहते थे कि ये साबुन जो कौम इस्तेमाल करती थी वहाँ के रामबिया के अफ्रीका के लोग बेचारे, तो उनको कहते थे कि सफ़ेद कलर हो जाएगा, इस बुनियाद पर वो खरीदते थे। तो खैर इस तरह एडवर्टाइज दी जाती है और एडवर्टाइज इस किस्म की होती है, इसलिए अखबार वाले एडवर्टाइज देते हैं, नीचे लिखते हैं विक्रेता ने आती है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है कंपनी वाला वो कह रहा है। कल आप अखबार वाले के पास जाकर कहोगे तुमने तो ये कहा था ना, ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस तरह के मामला नेटवर्क मार्केटिंग के ऐसे होते थे। नेटवर्क का माना जाल, तेज न समझ में आवे तो ये भी कारोबार की क्या है, जाल है पूरी के, एक से दूसरा, दूसरे से दो, तो दो इसके मिले, फिर इसको तीसरा चौथा इस तरह इसको मिले, नसबनामा पूरा चलता ही रहेगा इस तरीके। इसलिए उसको कहा जाता है पिरामिड भी देखा है ना, दूसरा का नीचे से बड़ा है, ऊपर जाके छोटा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरीके से ये। नंबर 2, चूंकि इसमें शिरकत जायज़ नहीं इसलिए बेवकूफ़ होगा कि खरीदो, तो सबको क्या करता रहेगा, खुद तो मैं ना खरीदूँ लेकिन दूसरे खरीदार बनाऊँ, इस तरीके की। तो आपको किस पर मिल रहा है और कैसा कमीशन, इतना लंबा थोड़ा कहाँ से मिल रहा है, तो थोड़े दिन देंगे ना फिर दुकान बंद हो जाएगी। चूँकि इसमें शिरकत जायज़ नहीं है इसलिए दूसरों को इसमें शरीक करना और नीचे के मेंबरों की वसादत से कमीशन हासिल करना भी जायज़ नहीं है। नंबर 3, मुसलमानों को इस तरह के तमाम कारोबार मुसलमानों को इस तरह के तमाम कारोबार से बचना चाहिए और किसी भी ऐसी तिजारत में शामिल नहीं होना चाहिए जो इस्लाम के मुकर्रर किए हुए उसूल तिजारत से मुतसादी होता ही रहेगा दुनिया के अंदर। कारोबार नई शक्लें, लेकिन निकालने वाले वही एक वजन के दो, यहूद और हनूद। इसलिए इन दोनों ने जो भी निकाला होगा इसके पीछे सूद न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे से, पीछे से, बीच से, सड़कों में और बीच सदन में, बीच अफ्तर के अंदर कहीं न कहीं से आकर ऐसा लग जाएगा कि छुटकारा नहीं मिलता। तालीमी कर्ज, तालीम इंसान की ये इजलास मुसलमानों को तवज्जो दिलाता है कि इन पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों की तालीम को अव्वलिन तरजीह दे और अपनी आमदनी का माकूल हिस्सा उनकी तालीम और तरबियत पर सर्फ करे। नंबर 2, मुसलमानों को चाहिए कि अपनी नई नस्ल की तालीमी ज़रूरतों के पेश नज़र मुल्की, रियासती और आलाकाई सतह पर इत्तलाआती इदारा अंजमन सेंटर कायम करे जो मुल्क और बैरून मुल्क में आला तालीम के मौक़े और हुकूमत की तालीमी इमदादी स्कीमों से नई नस्ल को वाकिफ़ कराए। नंबर 3, मुख्तलिफ उलूम स्कूल की तालीम के लिए कर्ज लेना होता है। अब वो बेचारा परेशान होता है, गरीब आदमी है, उसका बच्चा है स्कूल में, कॉलेज में है, खास करके कॉलेजों में जाकर 12वीं के बाद ही मसाइल आते हैं। अब किसी कॉलेज में जाना है, उसकी फीस दाखिले की इतनी है, या 1-2 साल हो गए हैं, अचानक कोई हादसा पेश आया, वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, या घर के हालात ऐसे हुए, या कोरोना आ गया, ये तो मुसीबतें हैं, इस तरह का कोई हादसा हो गया। अब ये बच्चा आखिरी साल में है और किसी तरीके से पैसे नहीं है इनके पास। अब ये अगर आखिरी साल के लिए कॉलेज के अंदर फीस नहीं देता है तो दाखिला नहीं होता है, तो ऐसे मौके पर वो कर्ज लेने के लिए आए। एक तो हुकूमत की अपनी स्कीम है 1% कर्ज, यानी 1% लेकर आपके पास सूद हुकूमत लेगी, यदि असल तो हुकूमत की तरफ से कंसेशन ही देना है, लेकिन सबको दे दे तो परेशानी, तो कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 5%, इस तरीके से तालीमी लोन कहते हैं उसको, शिक्षण लोन, ये इस किस्म की जो होती है उसके लिए हुकूमत, लेकिन चूँकि वहाँ पर सामने क्या देना पड़ता है, चाहे 1%, 2%, 3% सूद तो देना ही पड़ता है। अब इसके मुकाबले के अंदर कौन देगा मुझको? तो मुसलमानों की कुछ तंजीमें ऐसी हो कि वो ये दे, ऐसे भी शुरू हो चुकी है और कर ही रही है, बरूद में भी कर रही है, बिलावल का मतलब जैसा। तो ये इस किस्म के करने वाले मौजूद ही है, वो कुछ न कुछ इधर उधर से लोगों से रकम लेकर इस किस्म के बच्चों की भी माली मुआवनत करते हैं। कुछ हुकूमतों की स्कीमें होती है, कुछ कंपनियों की तरफ से भी तालीमी इदारों के अंदर ये होता है। इस तरह की तमाम मालूमात हासिल की जाए
اور مسلمان بچوں کے انتظام کیا جائے تعلیم کے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ تعلیم میں آگے بڑھے. دنیاوی تعلیم کی گفتگو ہو رہی ہے، دین کی نہیں. دینی تعلیم کے لیے تو لوگ روپیے دیتے ہیں کہ بلڈنگ کوئی اتنی مضبوط بن جاتی ہے ماشاء اللہ یہ، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے یہ بھی مسائل ہے. تو ایک شکل وہ بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ دونوں کو جمع کر دو، اس کو دین دنیا میں تو جلدی ملے گا اس کو. نمبر 3 مختلف ایسے علوم سینٹر قائم کرنا، ایسی انجمنیں، ایسی تعلیمی ادارے قائم کرنا، خود ہی اسکولیں مسلمانوں کی قائم ہوں گے جس کا خرچہ کم ہو مسلمان بچوں کو، یہ بھی ایک شکل ہے. اور ایک یہ ہے کہ 12ویں کے بعد تو اسکولیں مسلمانوں کی کالج کم ہے پورے ملک کے اندر، اور اصل مسئلہ وہیں آتا ہے 12ویں کے بعد ہی. تو پھر اس کے لیے کالج وغیرہ کے لیے بھی انتظام کرنے کے لیے اس طرح کی کچھ تنظیمیں ہیں اور وہ رقم دیتی ہے لوگوں کو. تو ایسی تنظیمیں قائم کی جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا ہی غالب آ جائے اور دینی تعلیم کے سلسلے میں کوئی توجہ نہ ہو. آہستہ آہستہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مدرسوں کو نہ مل کے ان کو مل جائے، ان کو بھی ملے، ہم ناراض نہیں ہے اس سے. اور یہ خود ایک طریقہ صحیح نہیں ہے کہ 100% زکوٰۃ ہی سے مدرسے چلائے جائے. امت کے لیے مدرسے والے تو لائیں گے کہیں سے رقم، لیکن امت کے لیے ضروری ہے کہ للہ حکومات سے بھی اس کا انتظام کرے، ورنہ 100% زکوٰۃ کی رقم قرآن کا یہ ذریعہ نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. بہت ساری بیوائیں عورتیں رہ جاتی ہیں، ساری رقم مدرسوں میں چلی جائے، بہت سارے یتیم بچے رہ جاتے ہیں، بہت ساری مسافر رہ جاتے ہیں. اس طریقے سے تو کتاب اللہ نے مجموعی پوری معاشرے کے جو کمزور افراد ہیں ان سب کا لحاظ کیا ہے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے امت کے لیے کہ امت کا بہاؤ. یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ اس کے دو بنیاد ہے. ہاں اس کے ہے، اس میں احناف نے تو مؤلفۃ قلوبہم کو نکال دیا، احناف کے یہاں 7 رہے. ان 7 میں بھی غور کیا تو 2 چیزیں معلوم ہوئی، ضرورت اور دین، اور دونوں مدرسوں میں پائی جا رہی ہے. وہاں خالی صاحب کا پورا مضمون ہے، اور اس طریقے سے مدرسوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ پسندیدہ سمجھا گیا. یہ نفی نہیں ہے اس کی. حضرت مفتی لاہوری صاحب کا پورا رسالہ ہے، اسکول اور دنیاوی تعلیم کے لیے اس کو قرض دینا ہے، یہ کسی کو زکوٰۃ دینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی طالب علم کو دینا. حضرت نے دونوں کو پروف کر کے بتلایا ہے. یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ چیز اب ہم کہتے رہیں گے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ نہ رہتا اپنا زکوٰۃ ملتی ندی بتی رہا ہے ادھر ہی جائے. اس بنیاد یہ بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت ساری رقم زکوٰۃ کی حکومت لوگوں نے نکالی اور ابھی بھی نکل رہی ہے. تنگاری کا اترا نے کچرا صاف کرنے کے لیے بھی لوگ دے رہے ہیں رقم. تو یہ اس طریقے سے سب چیزوں کے لیے بھی مل رہی ہے، اسکول کالج کے لیے بھی دینے والے دے رہے ہیں. لیکن یہ تنظیم قائم ہونی چاہیے دینی کاموں کے لیے. جن علاقوں میں اسکول کا رواج زیادہ ہے اور مدارس کے سلسلے میں بہت کمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہاں یہ مشورے دینے میں گڑبڑیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے جہاں دینی مدارس بھی ہے اور اسکول کالج کے لیے بھی مسلم بچوں کو ضرورت ہے. امت کی یہ بھی ہے یا اطلاع کمانے ہی کے لیے تو یہ پڑھ رہے ہیں، یہ تھوڑے کہ کسی کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ایک مولوی فارغ ہو کر مدرسے کی سوچے گا، لیکن ایک ماسٹر نکل کر اسکول کی نہیں سوچے گا. میں اپنے گاؤں میں اسکول قائم کروں یا اپنے گاؤں میں کوئی تعلیمی سلسلہ، یہ بیچارہ اپنے ہی کرے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی لوگوں میں ہوں کئی لوگ ہمارے گاؤں کے ایک صاحب پروفیسر تھے. میں نے کہا مولوی لوگوں نے 3 مدرسے قائم کیے، چاہے بڑے بھی ہوں گا لیکن ہے تو صحیح، اور دوسرے 2 مدرسے ہیں، اور آپ نے ایک اسکول تک قائم نہیں کی. 11ویں 12ویں اسکول کی ہمارے یہاں سائنس کی، لیکن اس کو طلبا نہیں ملے یا اساتذہ نہیں ملے تو چکر ہو اس کو بند کرنا پڑا. اور اس کے جو اوزار تھے وہ بیچے اسکول والوں نے. ہمارے سپن صاحب تھے، وہی چیئرمین تھے اس وقت، تو اس کو بیچنا پڑا. حالانکہ اسی کے لیے ہم نے بھی عید کے دن اعلان کیا تھا گاؤں میں کہ بھائی رقم دی جائے سائنس کے آلات خریدنے کے لیے. مسلمان کی یہ بھی ضرورت ہے، وزیر حکومت کی بات تھی، لیکن پھر بیچنا پڑا. تو میں نے کہا پھر دوبارہ ہم کھڑے نہیں ہوں گے تمہارے بیچنے والوں کے لیے. پھر خیر بعد میں تو آگے بڑھے اسکول کالج میں، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پر اس طرح ہے. اس لیے یہ مسئلہ بہت سے مولوی کبھی بیچارے ان کے چکر میں آ جاتے ہیں، 100% اسکول ہی فیور کرتے ہیں. بہت سارے مولوی اتنے کبتر ہوتے ہیں کہ ذرا بھی کس کے مسئلے مدرسوں ہی کے لیے. یہ دونوں کے بیچ میں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے تو 1% آتے ہیں مدرسوں میں اور باقی 99% دنیا میں ہی لگے ہیں. تو ان کی دنیا بھی صحیح ہو، دین بھی صحیح ہو، ان کے لیے انتظام. اور اسی لیے ان کے لیے گورنمنٹ کا نظام سب سے بہتر شکل ہے ان کی تربیت کے لیے. نمبر 2 مختلف علوم اور کورسوں کے لیے اسکالرشپ فراہم کرنے والے اداروں تنظیموں کے مابین رابطہ اور تعاون و اطلاعات یہ کے بھی ضروری ہے. ایک آدمی ہے، ایک ہی بچہ ہے نا، سب جگہ سے وہ وصول کر لیتا ہے. نہیں کہنے کے لیے وہاں جاؤ، مولانا ابوالکلام آزاد مل رہا ہے اس میں سے جاؤ، اور دوسری تنظیموں سے مل رہا ہے تو وہاں بھی جاؤ، اور ساری رقم ایک ہی کو مل جاتی ہے، دوسروں کو ملتی نہیں. اس طرح بھی نہ ہو.
अपना इंतजाम उसको पूछा जाए या दूसरी तंजीमों से रब्ता करके कि भाई या ये कि आपने कम दिया है और दूसरी तंजीम से ले रहा है और उसमें भी उसको पूरा नहीं हो रहा है, तो जाहिर है उसको तंजीमों के माबेन रब्ता और ताउन और इत्तिलात के तबादले का नज़्म कायम हो ताकि तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप के उसूल में सहूलत हो। नंबर 4, रियासत और आलाकाई सतह पर ऐसे तालीमी फंड कायम करे जिससे होनहार और ज़रूरतमंद बच्चों की आला तालीम के उसूल में मदद की जा सके। नंबर 5, असली उलूम के माहिरीन खुसूसन रिटायर्ड और प्रोफेशनल हजरत को चाहिए कि वो अपनी मालूमात और तजर्बा से नई नस्ल की मौसर रहनुमाई का होने से रहा ये इंतजार नहीं हो रहा है। एक 3 जमात में लगे हुए साहब थे, मास्टर साहब, उनको हमने एक काम के लिए कहा तो आए तो सही, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो मौलाना काम करने को चाहता था क्योंकि सभी लीला ही लेकिन थोड़ी मजबूरी है। मैंने कहा मास्टर की भी मजबूरी है तो मौलवी की मजबूरी कितनी होगी। रिटायर होने के बाद भी सरकार इतना देती है जितनी असल तनख्वाह नहीं होती थी। उस वक्त जो तनख्वाह होती थी, हमारे भाई साहब है उनकी तनख्वाह उस वक्त कम थी, अभी रिटायर हो गई। इसके बाद रिटायर को भी काफ़ी साल हुए, उन्होंने खुद मुझे सुनाया कि 40,000 खाना मिल रही है, 35 मिल रही है, लेकिन नया जो पगार पंच आएगा तो इसके अंदर इतनी ही हो जाएगी। और जब शुरू में गए थे उस वक्त इतनी नहीं थी, बल्कि रिटायर हो गए उस वक्त भी इतनी नहीं, और ये मिल रही है। खैर लेकिन जब दीनी काम की इनको बात नहीं करेंगे, दुनियावी काम की बात करेंगे तो नहीं करते हैं, दीनी बात की भी नहीं करेंगे। मास्टरों को लेकर तो आप रखो और पूछो उसके बाद कि कितनी तनख्वाह लेंगे आप और क्या होगा, किसी न किसी तरीके से बहुत सारे मसाइल है। तो मौलवी है कि मुफ्त में मकतब चलाता है और बगैर किसी सहारे के मकतब में मस्जिद खड़ा कर देता है। अभी इरशाद करते हैं बिहार के हमारे यहीं के पारी थे अहमदाबाद में, थोड़े साल पहले तो बेचारे ने मुझे कहा कि अभी मकतब का निजाम है, बिल्डिंग भी अल्लाह पाक ने कायम करवा दी उसकी मेहनत से, और मस्जिद भी अभी पूरी तामीर हो। तो काम करना चाहे तो अकेला आदमी भी काम कर सकता है, लेकिन असली उलूम के माहिरीन से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं हो सकता। कुछ होते हैं मुखलिस, नफी नहीं इसकी, लेकिन शाज़ व नादिर ही हो। नंबर 6, उलमा और असहाबे सुरूरत को चाहिए कि वो इन हजरत की खिदमत से फ़ायदा उठाने की मुनज़्ज़म कोशिश करे। तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं लेकिन वो फ़ायदा लेना चाहते हैं तब है नहीं, लेकिन ये कि खैर इनको भी तरतीब देकर किसी तरह करवाया जा सकता है। नंबर 7, मुसलमानों के असली तालीमी इदारे इखराजात में ऐसी सहूलतें फराहम करे कि ज़रूरतमंद व बासलाहियत तलबा उनसे बआसानी फ़ायदा उठा सके। बिलखुसूस डोनेशन के बाहरी और गैर शरई बोझ से मुसलमान तलबा व तालिबात को आज़ाद करे कि ये न सिर्फ गैर मसला है। अभी हुकूमत ने अक़लियती जो हमारी हाई स्कूल है, लघुमती संचालित काफ़ी हाई स्कूल हैं पूरे गुजरात में, अब इनमें हमें खुद ही इख्तियार था हमारी तरफ से असातिज़ा को रखने का, और अमूमन मुसलमान असातिज़ा रखे जाते थे हाई स्कूलों, लेकिन इसके पीछे इनके पास से बड़ी बड़ी रकमें ली गई है। हर जगह पर कोई काम बाकी नहीं है कि जहाँ रकमें न ली हो, इस तरीके से। तो अब इसके ऊपर ये मसला आया है। अब ये जो मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत ने तो अपने एतबार से किया है, नई तालीमी पॉलिसी में मुसलमान को पीछे रखना है, इसलिए मुसलमान पढ़े लिखे अब आएंगे नहीं हर स्कूल के अंदर, और उसमें भी गैर मुस्लिम आएंगे। हमारे पास जो एक चीज़ थी वो भी, लेकिन उसमें हमने भी जो कुछ किया था अब तक तो परेशान है। कई मास्टरों ने मुझे कहा कि वो हार गया हुआ, मैंने कहा आप नहीं आएंगे, गैर आएगा तो कोई भी आए, लेकिन इनको तो समझ में आए, लंबी लंबी रकमें लेकर बैठ जाते थे, तो हमारे पास से डोनेशन लेते थे इस तरीके से। तो ये स्कूलों में कॉलेजों में कभी मजबूरी भी होती है। मौलाना गुलाम अस्तानवी साहब चला रहे हैं स्कूल में कॉलेज, और उसके अंदर एक एक प्रोफेसर को तनख्वाह देनी पड़ती है 2 लाख 3 लाख 5 लाख, तो वो निकालनी है, तो इसके लिए फिर डोनेशन भी इतना ही लिया जाएगा। लेकिन ये कुछ कम कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले। ये दरस मुसलमान तलबा व तालिबात को तलकीन